Hello everyone, I'm Rikta. Welcome back to Medicine Nursing. So as our session is going regarding this expected date of delivery calculation, today we are here with the part 2 where we will discuss in detail further regarding the varieties of a concept from this EDT. So before dive into today's sessions, let's summarize the last classes. So I told you अगर कोई मदर आपके पास आए and पूछे कि कब मैं अपना बच्चा डिलीवर करूंगी, एज अ नर्सिंग ऑफिसर व्हाट विल यू आंसर? So, as a nursing officer, you simply ask the mother to tell what is the first day of her LMP. Okay, first day of her LMP. Then from there you simply calculate this EDD. Okay, so for calculating this EDD, you must be knowing the LMP of the mother. Then only you can calculate this expected date of delivery. So what is expected date of delivery? Expected date of delivery is an estimated day when a pregnant woman is likely to give birth. So EDD is ये एक expected day time होते हैं like 280 days और 40 weeks from LMP जब एक मदर बच्चा डिलीवर करेंगे. So for calculating this EDD you should know this LMP. So when you will know about this LMP, आप बस 280 days ऐड कर दो. LMP के साथ 280 डेज ऐड करने से EDD निकल जाएगा. एज सिंपल एज दैट. सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस EDD वी आर यूजिंग एन सिंपल एंड साइंटिफिक फॉर्मूला कॉल्ड नेग्लिस रूल. ओके, सो नेग्लिस रूल कहते हैं कि LMP EDD इज इक्वल टू LMP प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ्स. अब यहाँ जो मेंशन है LMP प्लस 280 डेज इज इक्वल टू EDD and here EDD is equal to LMP plus 7 days plus 9 months. Both are same. Okay, this 7 days plus 9 months and this 280 days both actually mentioning the same thing. So no matter whether EDD is LMP plus 280 days or EDD is LMP plus 7 days plus 9 months, both are indicating the same thing. Now कुछ बुक कहते हैं कि EDD is equal to LMP plus 7 days plus 9 months. कुछ बुक में मेंशन रहेगा EDD is equal to LMP plus 9 months plus 7 days. Now mathematically adding the 7 days first then 9 months or 9 months first then 7 days both are giving the same result, right? अगर आप 7 days को पहले ऐड करो then 9 months या फिर 9 months को पहले ऐड करो then 7 days, both will give the same result, right? Because they are looking the same. So कुछ भी आप अप्लाई करो, कुछ भी फॉर्मूला यूज करो, आपको आंसर तो वही मिलेगा, है कि नहीं? बट फिर भी नेग्लिस रूल कहते हैं कि आप हमेशा EDD कैलकुलेट करने के टाइम पे फॉर्मूला यूज करो LMP प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ्स. ओके, नाउ आप पूछोगे कि अगर आप कह रहे हो कि EDD इज इक्वल टू LMP प्लस 7 डेज और 9 मंथ्स, अगर जो आंसर देगा और 9 मंथ्स को पहले ऐड करके 7 डेज को बाद में ऐड करने से वही आंसर देगा, देन आई कैन यूज एनीथिंग ना, आई कैन यूज एनी ऑफ देम. बट द कंसेप्ट इज रॉन्ग बिकॉज इन सम केसेस, कुछ ऐसा भी केस है जहाँ पे आपको 7 डेज पहले ऐड करके 9 मंथ्स को लास्ट में ऐड करके जो आंसर मिलना चाहिए, इसको यूज करके आपका आंसर डिफरेंट आएगा. एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज यूज दिस EDD इज इक्वल टू LMP प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ्स. दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला. नाउ आई विल discuss why I'm continuously saying use this formula, means adding 7 days first then 9 months. Okay, let's pause it. So if a mother tell you that her LMP is 10th January, okay, अगर मदर का LMP is 10th January, then let's calculate this EDD by using both formula, this formula also and here this formula also. Let's calculate EDD. So I'm adding 7 days first with this LMP. Okay, so 10th January is her LMP, adding 7 days first I'm getting 17th January. देन उसके साथ मैंने सेकेंड स्टेप में 9 मंथ्स ऐड कर दिया. सो 9 मंथ्स ऐड करने से आई एम गेटिंग 17th October. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला LMP प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ्स, मुझे EDD मिल रहा है 17th October. ओके, नाउ लेट्स यूज दिस फॉर्मूला एडिंग 9 मंथ फर्स्ट देन 7 डेज. चलो, LMP 10th January, उसके साथ 9 मंथ्स ऐड करो, यू विल गेट 10th October. उसके साथ 7 डेज ऐड करो, यू विल गेट 17th October. बट वेट, इफ आई यूज बोथ फॉर्मूला आई एम गेटिंग द सेम आंसर. ओके, हियर ऑल्सो 17th October, यहाँ पे भी मुझे 17th October मिल रहा है.
तो कुछ भी फॉर्मूला यूज करो ना, आंसर तो वही आएगा, 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर। ओके, इतना तक तो सही था, तो कुछ भी फॉर्मूला यूज करो। बट नाउ लेट्स गिव एन अनदर एग्जाम्पल वेयर मदर सेज दैट माई LMP इज 30th अप्रैल। ओके, तो आप दोनों फॉर्मूला ही यूज करके देखते हैं कि EDD कितना निकलता है। सो इफ आई एड 7 days fast with this LMP 30th April, you will get 37th April, yes or no? बट आपको अच्छे से पता है कि अप्रैल में होता है टोटल 30 days, तो एक्स्ट्रा जो 7 days है वो कहाँ जंप करेगा, नेक्स्ट मंथ में उसको भेज दो। अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ क्या आता है, मई मंथ। तो 37th April मीन्स 30th April प्लस एक्स्ट्रा 7 days, so this extra 7 days will jump into next month, that is 7th May. So 37th April means 7th May. अब उस 7th मंथ के साथ 7th May के साथ आप 9 months ऐड करो। अगर आप 9 months ऐड करोगे तो यू विल गेट द EDD इज 7th February, yes or no? मई के बाद 9 month ऐड करो तो February आएगा, and 7th February you will get as EDD by using this formula, first adding 7 days and then 9 months. Okay, now let's use this formula. EDD is equal to 9 months plus 7 days with LMP. चलो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। So LMP is equal to 30th April. Now I'm adding 9 month first, so I'm getting 30th January. Now I'm adding 7 days in next step, I'm getting 37th January. But you know जनवरी में टोटल 31 days होता है, सो एक्स्ट्रा जो 6 days है, 31 + 6 इज इक्वल टू 37, सो एक्स्ट्रा जो 6 days है वो जंप करेगा फेब्रुआरी में। ओके, नाउ फेब्रुआरी में ऐड करने से आपका EDD आएगा 6th February। ओके, देन उस 6th February यू आर गेटिंग एज EDD। बट वेट, if a mother is saying my LMP is 30th April and अगर आप ये फॉर्मूला को यूज करते हो, ये फॉर्मूला यूज करके आपका EDD आ रहा है 7th February, बट जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है 6th February। सो ऐसा अंतर क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर आप खुद ही देखो, हर मंथ इज नॉट हैविंग द सेम डेट। कुछ मंथ में 31 days है कि नहीं? कुछ मंथ में 30 days है, कुछ मंथ में 28 और 29 days है, दैट इज February। सो इफ यू ऐड दिस 9 month फर्स्ट, अगर आप 9 months को पहले ऐड करोगे कोई भी LMP के साथ, then you can jump into you can land into a month which is having fewer days, and that won't give you the true 280 days after adding 9 month first and then 7 days. मोटी बात ये है कि अगर आप पहले 9 months ऐड करोगे तो आप कोई एक ऐसा मंथ में जा सकते हो जिसमें लेस डेज है, तो फिर आपका 280 days निकल के नहीं आएगा आंसर, एंड देन उस टाइम आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। दैट्स वाई whenever you are using EDD, always use this formula, adding 7 days first, then 9 months won't give you any wrong answer. Okay, whatever the LMP is, you just use this formula, 7 days first, then 9 months, then you will get this EDD correctly. I hope it's clear for you. See, if a mother says LMP 30th April and if EDD examiner is asking you to calculate, and in option it is given 7th February also and in option 6th February also, now you know कि कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर तो सेम निकल के आएगा। बट जब आप दोनों फॉर्मूला यूज किए, एक में देखो 7th February आंसर आ रहा है, एक में 6th February आंसर आ रहे हैं, और ऑप्शन में दोनों ही है, तो आप चूज किसको करोगे? तो मैं आपको आई टोल्ड यू अर्लियर दैट EDD इज LMP प्लस 7 days प्लस 9 months। ओके, अब इसका मतलब जो है LMP plus 280 days, both are indicating same. So if a mother is saying my LMP is 30th April, so if you add this 30th April plus 7 days plus 9 months, अगर आप 30th April के साथ पहले 7 days ऐड करो then 9 months, तो आपका आंसर निकल के आएगा 7th February। वही सेम चीज अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो मतलब 30th April के साथ आप ऐड कर दो 280 days,
In this case also you will get 7th February. That's why I'm saying ये फॉर्मूला तो गलत हो गया. जो फॉर्मूला यूज करके आप 6 फरवरी आपका आंसर आ रहा था, दैट मीन्स पहले 9 मंथ्स ऐड करके देन नेक्स्ट में 7 डेज ऐड करके आपका 6 फरवरी आंसर you are getting. That's why this formula is not always applicable in all cases. So whenever they are asking you to calculate EDD, always use 7 days first, then 9 months. With this LMP you will get the accurate result. Okay, so this was the last class discussion कि EDD is equal to 280 days with this LMP. Okay, so ये तब तक आपका एप्लीकेबल है जब मदर का मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज. ओके, इफ इन क्वेश्चन दे मेंशन मदर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज और इफ नथिंग मेंशन यू यूज दिस फॉर्मूला. नाउ हर मदर का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का नहीं होता है. कुछ मम्मी का 35 डेज होते हैं, कुछ वुमेन का 40 डेज का होते हैं, कुछ वुमेन का 25 डेज का रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं. इन सच केसेस आप कैसे ईडीडी निकालोगे? ठीक है, सो जब भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि 28 डेज ऑफ साइकिल दैट इज नॉर्मल और इफ नथिंग मेंशन देन यू यूज दिस फॉर्मूला. सॉरी, दिस फॉर्मूला, नॉट दिस वन. I told you what is the difference between them. Now if in question mention that mother's menstrual cycle is 40 days या फिर 30 days या फिर 35 days, that is not 28 days, then how will you calculate this EDD? Today we will discuss this. Now let's proceed. So if a mother's menstrual cycle length मोर देन 28 डेज. ओके, दोनों केस ही हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर मदर का मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 28 डेज, जैसे कि 30 डेज भी हो सकता है, 35 डेज या फिर 40 डेज या फिर 45 डेज, वॉट एवर इट इज. और अगर मदर का मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 28 डेज, जैसे कि सोचो 25 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन एवरी 25 डेज इंटरवल सी इज गेटिंग हर पीरियड, या 26 डेज, 27 डेज, वॉट एवर इट इज. दोनों केस में आप ईडीडी कैसे कैलकुलेट करोगे? सो जब भी आपको मदर का मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ दिया जाएगा क्वेश्चन में जो कि 28 डेज के अंदर नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो. पहले आप उसका वो तो एलएमपी कुछ ना कुछ बताएगा, राइट. जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं कि मदर आपको बोल रहे हैं माई एलएमपी इज 4th मार्च. ओके, 4th मार्च 2025. आप नॉर्मली इसका ईडीडी कैलकुलेट करो. कैसे आप ईडीडी कैलकुलेट करोगे? हाउ आई टोल्ड यू टू कैलकुलेट ईडीडी? एलएमपी प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ्स. ओके, तो जब भी मदर आपको एलएमपी बोलेंगे आप उसको नॉर्मली उसका ईडीडी कैलकुलेट करो. सो 4th मार्च के साथ मैं ऐड कर दिया 7 डेज. सो 7 डेज ऐड करने से आई एम गेटिंग 11th मार्च. ये सर नो, नाउ आई एम एडिंग 9 मंथ्स हियर विद दिस 11th मार्च. सो व्हाट आई एम गेटिंग, मार्च के साथ अगर आप 9 महीना ऐड करोगे तो यू विल गेट दिसंबर. ओके, दिसंबर. सो 11th दिसंबर आई एम गेटिंग एज ईडीडी. नाउ आंसर लेकिन ये नहीं है, ये तब तक होता जब तक मदर का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता. लेकिन मदर आपको बोल रहे हैं कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं एवरी 30 डेज में, मतलब मदर का साइकिल लेंथ है 30 डेज. सो अगर 28 डेज होता, 28 डेज इज द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल लेंथ, देन आपको इतना तक करने से ही आंसर निकल के आ जाता. लेकिन मदर आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया कि माई मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 30 डेज. अब आप क्या करोगे? चलो, जब भी मदर कुछ भी बोलेंगे लाइक दैट इज नॉट कमिंग अंडर 28 डेज, सो यू जस्ट टेक द डिफरेंस. मदर इन्फॉर्म कर रहे हैं कि माई मेंस्ट्रुअल लेंथ इज 30 डेज, बट यू नो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल लेंथ इज 20 डेज. नाउ अंतर कितना है? 2 डेज का. ओके, 2 डेज ज्यादा है मदर का, 30 डेज. सो आप 11th दिसंबर के साथ 2 डेज ऐड कर दो. इन सच केसेस जब मदर का मेंस्ट्रुअल लेंथ 28 डेज से ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होगा आप नॉर्मल ईडीडी के साथ उतना डेज ऐड कर दो. एज हियर मदर इज सेइंग माई मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 30, आप नॉर्मल ईडीडी जो निकल के आया उसके साथ 2 डेज ऐड कर दो. सो 11th दिसंबर के साथ अगर मैं 2 डेज ऐड करूंगी तो आई विल गेट 30th दिसंबर एज ईडीडी.
वेरी सिंपल राइट. जितना डिफरेंस होगा उतना ऐड कर दो. एज मदर का मेंस्ट्रुअल लेंथ इज मोर देन 28 डेज, 2 डेज ज़्यादा है, इसलिए मैंने ज़्यादा वाला को ऐड कर दिया. जितना फर्क है उतना डेज को ऐड कर दो नॉर्मल ईडीडी के साथ. नाउ अब एग्जाम्पल देते हैं वही सेम चीज. मदर इज सेइंग माई LMP इज 4th March. ओके, बट इन दिस केस मदर इज सेइंग दैट माई मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज कोई भी 48 डेज मान लो, मतलब menstrual cycle length 24 days. ओके, नाउ LMP इज 4th March. कैलकुलेट दिस EDD. पहले मैं ऐड करूंगी +7 days, सो आई एम गेटिंग 11th March. ओके, देन आई एम एडिंग 9 months हियर, सो आई एम गेटिंग 11th December. इतना तक तो सही था, इतना में ही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा जब तक मदर का menstrual cycle length 28 days. बट इन क्वेश्चन दे आर मेंशनिंग दैट मदर इन्फॉर्म ऑलरेडी माई साइकिल लेंथ इज 24 डेज. मतलब 24 डेज से 28 डेज का अंतर कितना है? 4 डेज का अंतर है. 4 डेज ज़्यादा है कि कम है? कम है, क्योंकि नॉर्मल लेंथ इज 28 डेज, मदर का मेंस्ट्रुअल लेंथ इज 24 डेज. मीन्स मदर इज हैविंग लेस मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ, 4 days लेसर देन दिस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ. तो आप इसके साथ बस -4 कर दो, 4 सब्सट्रैक्ट कर दो. अगर आप 4 days सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको निकल के क्या आएगा? 7th December. कैन यू इमेजिन हाउ सिंपल दिस कॉन्सेप्ट इज? अगर मदर का साइकिल लेंथ ज़्यादा है, 28 डेज से ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसको नॉर्मल EDD के साथ ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के रेडी हो जाएगा. अगर मदर का मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ कम है, 24 डेज, 25 डेज, 27 डेज, जो भी है, जितना डिफरेंस है, जितना लेस है, उसको नॉर्मल EDD के पास से सब्सट्रैक्ट कर दो. इसमें ऐड करोगे, इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा. सी, this is the very simple concept was our topic of discussion in today's class. As simple as that. This is very basic and very simple questions. I expect you all कि आप सब लोग अगर EDD calculation आएगा क्वेश्चन में तो you all answer correctly. Okay? So up to this, we will end up here. In next class, we will take some questions to how to calculate this EDD and we will finish our EDD sessions. Thank you.